नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। कल, आज और कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 250 साल पुराना है भारतीय डाक का इतिहास। दुनिया में सबसे पहले रचा था ये कीर्तिमान। और आज विश्व डाक दिवस है, 9 अक्टूबर, और हम रोचक बातें जानेंगे। दुनिया भर में विश्व डाक दिवस आज 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को और बिजनेस के लिए हर दिन काम आने वाले डाक विभाग की भूमिका और कैसे इस डाक विभाग की सेवाएं हमने 250 साल से हर नागरिक लेता आया है। आज हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां हम सब चाहे किसी ने भी तकनीक के जरिए बात कर सकते हैं, अपने प्रियजनों का हालचाल भी जान सकते हैं। मगर एक समय था जब ऐसा सोचना भी असंभव था। तब लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए उनके घर जाते थे या फिर चिट्ठी भेजा करते थे। भारतीय डाक सेवा अधिक डाकघरों के साथ, मतलब कि 1.5 लाख से भी ज्यादा अधिक डाकघरों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डाक प्रणाली भारत में है। और ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी। भारतीय डाक सेवा की स्थापना यूं तो 165 साल पहले अप्रैल में 1954 को हुई थी, लेकिन सही मायने में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1954 को मानी जाती है। तब तत्कालीन भारतीय वाइसरॉय लॉर्ड डलहौजी ने इस सेवा का केंद्रीयकरण किया था और इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले 701 डाकघरों को मिलाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी। हालांकि इसके पहले लॉर्ड क्लाइव ने अपने स्तर पर 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। इसके बाद बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1974 में कोलकाता में एक प्रधान डाकघर बनाया था। अंग्रेजों ने इस सेवा की शुरुआत अपने सामूहिक व्यापारिक हितों के लिए की थी, मगर यह देश की आजादी के बाद भारतीयों के लिए सुख दुख का साथी बन चुका। अंग्रेजी हुकूमत ने 1854 में ही भारत में रेल डाक सेवा की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं क्या सेवा थी और एक डॉक्यूमेंट्री है, वो देखते हैं। For more than 150 years, the Department of Posts has been the backbone of India's communication network. After independence, the need for providing communication had doubled across the country. In 1947, there were only 23,344 post offices across the country, of which 19,184 were in rural areas and 4,160 in urban areas. But with a rapid rise in population, the demands for post offices has also increased. In light of the increased pressure, the government has been taking several steps to improve the functioning of the postal department. As the reforms came, inland letters changed to speed post, and speed post has now become e-post. In the year 1879, postcards were introduced, while the Indian postal order came in 1930. For faster and precise delivery, the postal index number or PIN code was introduced in 1972. In 1977, the Department of Posts introduced the Value Payable Post or VPP parcels and insured parcels. A rapid demand and increased stress on communication led to the division of the India Post into the Department of Posts and the Department of Telecommunications in 1985. The very next year, in 1986, speed posts were introduced. By 1994, you could send money to your loved ones living in other parts of the country through money orders. Post-independence, the Indian postal network expanded over 7 times. However, postal reforms continue even today. Recently, the government has taken several steps to strengthen the postal department. Project Arrow was introduced in April 2008
The project aims to create an effective, friendly environment for staff and customers, providing secure IT services and improving mail delivery, remittances, both electronic and manual, and postal savings plans. Then the Mail Network Optimization Project, or MNOP, was implemented with the objective of consolidation and optimization of the mail network of the Department of Posts with a view to improve quality of operations. Services such as all kinds of letters, speed post, registry and parcel, along with track and trace facility for money orders have been expanded and improved. According to government data, more than 27,215 post offices and administrative offices have been linked to the Wide Area Network, or WAN. New services such as express parcel, business parcel, cash and delivery, online money transfer service, instant money order and e-greeting have also been added. A mobile app has also been launched. The latest reform is the launch of the government's ambitious India Post Payments Bank on the 1st of September 2018. Today, one can easily spot a GPS-enabled post office vehicle on the streets. The Department of Posts has also started the initiative of postal delivery through GIS mapping in select cities. With an objective to leverage the strength of the vast postal network, the Department of Posts has also started retailing mutual funds and bonds. देश में डाक और तार यानी कि टेलीग्राम की शुरुआत दो अलग अलग विभाग के तौर पर हुई थी। समयांतर रूप से ही इनका विकास हुआ। 1914 में हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन दोनों विभागों का विलय कर दिया गया। इसके बाद भारत में 1875 के आसपास वीपीपी और पार्सल सेवा शुरू हुई थी। वही 1880 के आसपास पोस्टकार्ड की शुरुआत हो चुकी थी। टेलीफोन और मोबाइल के आने से तार सेवा की जरूरत आज तो खत्म हो चुकी है, लेकिन 1.5 सदी से भी ज्यादा के सफर के बाद आखिरकार इन सेवा को 2016 में बंद कर दिया गया था। कोई भी संस्थान डाकघर जितना आदमी की जिंदगी के इतने करीब नहीं पहुंच सका, उतना डाकघर पूरे देश में एक एक व्यक्ति के पास पहुंच चुका था। एक वजह यह भी है कि जिसके कारण सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में होने वाली कठिनाई की स्थिति में ये डाकघर जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे। पहली बार भारतीय डाकघर को राष्ट्रीय महत्व के एक अलग संगठन के रूप में स्वीकार किया गया था और उसे 1 अक्टूबर 1854 के डाकघर महानिर्देशक के सीधे नियंत्रण में सौंप दिया गया। इस तरह डाक विभाग इस वर्ष 1 अक्टूबर को अपने 150 वर्ष भी पूर्ण कर रहा था। भारतीय डाक व्यवस्था कई व्यवस्थाओं को जोड़कर बनी हुई है। 650 से ज्यादा रजवाड़ों की डाक प्रणालियों को, जिला डाक और जमींदारी डाक व्यवस्था को प्रमुख ब्रिटिश डाक व्यवस्था में शामिल किया गया था। इन टुकड़ों को इतनी खूबसूरती से जोड़ा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक संपूर्ण अखंडित संगठन है। लॉर्ड क्लाइव ने देश में पहली डाक व्यवस्था स्थापित की थी। इसके बाद वारेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था को और मजबूत किया। इन्होंने एक ऐसा महा डाकपाल के अधीन कलकत्ता प्रधान डाकघर स्थापित किया और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में क्रमशः 1785 के आसपास और 1792 में डाक व्यवस्था शुरू की गई। 1827 में डाक अधिनियम लागू किया गया ताकि तीनों प्रेसिडेंसी में सभी डाक संगठनों को आपस में मिलाकर देश स्तर पर एक अखिल भारतीय डाक सेवा बनाई जा सके। आइए देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री। लो आ गए हम फिर से एक बार, हाथों में चिट्ठी और दिल में लिए प्यार। हो रेत या समुंदर, जंगल हो या पहाड़, कंधों से कंधे मिला के रहते हैं हम तैयार। खोल के दरवाजा देखो आया आपका डाकिया, खोल के दरवाजा देखो आया आपका डाकिया। सुकन्या समृद्धि लाए हम, बचत खाते से संचय हो उत्तम। डिजिटल भारत को लेके अपने साथ दोस्ती का
बढ़ाते हुए हाथ। देखो 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 खोल के दरवाजा देखो आया आपका गया, खोल के दरवाजा देखो आया आपका गया। लो आ गए हम फिर से एक बार, हाथों में चिट्ठी और दिल में लिए प्यार। हो रेत या समुंदर, जंगल हो या पहाड़, कंधों से कंधे मिला के रहते हैं हम तैयार। खोल के दरवाजा देखो आया आपका गया, खोल के दरवाजा देखो आया आपका गया। सुकन्या समृद्धि लाए हम, बचत खाते से संचय हो उत्तम, डिजिटल भारत को लेके अपने साथ, दोस्ती का बढ़ाते हुए हाथ। डाक और तार दोनों ही विभाग शुरू से ही जन कल्याण को ध्यान में रखकर चलाए गए। लाभ कमाना उद्देश्य नहीं था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सरकार ने फैसला किया कि विभाग को अपने खर्च निकालने चाहिए। इतना ही नहीं, 20वीं सदी में भी यही क्रम बना रहा। डाकघर और तार विभाग के क्रियाकलाप को भी एक साथ विकास होता रहा था। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में दोनों विभागों को एक साथ जुड़कर मिला दिया गया था। भारतीय राज्यों के वित्तीय और राजनीतिक एकीकरण के चलते यह आवश्यक और अपरिहार्य हो चुका था कि भारत सरकार भारतीय राज्यों की डाक व्यवस्था को एक विस्तृत डाक व्यवस्था के अधीन लाए। ऐसे कई राज्य थे जिनके अपने जिला और स्वतंत्र डाक संगठन थे और उनके अपने डाक टिकट बट चलते थे। इन राज्यों के लेटर बॉक्स हरे रंग में रंगे जाते थे ताकि भारतीय डाकघरों के लाल लेटर बॉक्सों से अलग नजर आए। 1908 में भारत के 692 देशी राज्यों में से 635 राज्यों ने भारतीय डाकघर में शामिल होने का स्वीकार कर लिया। केवल 15 राज्य बाहर रहे, जिनमें हैदराबाद, ग्वालियर, जयपुर और ट्रावनकोर प्रमुख था। 1925 में डाक और तार विभाग का बड़े पैमाने पर पुनः गठन किया गया। विभाग की वित्तीय स्थिति का जायजा लेने के लिए उनके खातों का दोबारा व्यवस्थित किया गया था। उद्देश्य यह पता लगा कि विभाग करदाताओं के कितना बोझ डाल सकते हैं या सरकार का राजस्व कितना बढ़ रहा है, और इस दिशा में विभाग की चारों शाखाएं यानी डाक, तार, टेलीफोन और बेतार की कितनी भूमिका निभा सकते हैं। आइए देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री। कोरोना महामारी में जब पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमारे सभी साथी पोस्टमैन साथ ही लगकर और पब्लिक का सेवा किए और मास्क और सैनिटाइजर सारा व्यवस्थित के साथ सभी लोगों ने कार्य किया। अदर बैंक का भी पैसा दिए हैं और अपने पोस्ट ऑफिस का भी पैसा सभी लोगों को देते हुए सारा कार्य किया और किसी को हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग जब बचपन में आते थे पोस्ट ऑफिस तो वहाँ पर केवल बस चिट्ठी जाती थी और पोस्ट कार्ड वहाँ होते थे, और अब जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो सरकार आई है वो हम लोग को एक छत के नीचे तमाम सुविधाएं दे रही है। जैसे बैंकिंग सेवा दे रही है, पत्र भी जा रहे हैं, पत्र आ भी रहे हैं हम लोग, मतलब कई, और ई पेमेंट भी वहाँ से मिल रहा है, ATM कार्ड अब निर्गत हो रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस को डेवलप करने में अपना पूरा योगदान दे रही है और ग्राहकों को हर तरीके से संतुष्ट करने का काम कर रही है। जैसा हमारे यहाँ प्रधान डाकघर है, यहाँ पे एक ही छत के नीचे हमें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आधार कार्ड बनना हो या फिर किसी को FD करवाना हो या पैसे निकालने हो या चिट्ठी के लिए हो जमा करना, स्पीड पोस्ट के लिए, एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हमको प्रदान हो रही हैं। और इस डाकघर, प्रधान डाकघर होने की वजह से हम सभी उपभोक्ता बहुत संतुष्ट हैं। इसके लिए हमको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा लाइन नहीं लगती है, आराम से हमारा यहाँ सारा एक ही जगह पे काम हो। भारतीय डाक सेवा का क्षेत्र चिट्ठियां बांटने और संचार का कारगर साधन बने रहने तक सीमित नहीं है। आपको सुनकर हैरानी हो सकती है कि शुरुआती दिनों में डाकघर विभाग डाक बंगले और सरायों का रख रखाव भी करता था। 1830 से लगभग 30 सालों तक यह विभाग यात्री को लिए और यात्रा करने वालों के लिए सुविधाजनक
सड़क बनाता था और कोई भी यात्री एक निश्चित राशि से अग्निम तक पालकी, नाव, घोड़े, घोड़ागाड़ी और डाक ले जाने वाली गाड़ियों में अपनी जगह आरक्षित करवा सकता था। वह रास्ते में पड़ने वाली डाक चौकियों में आराम भी कर सकता था। यही डाक चौकियां बाद में डाक बंगला कहलाई गई। 19वीं सदी में आखिर में प्लेग की महामारी फैलने के दौरान डाकघरों को कुनेन की गोलियों के पैकेट बेचने का काम भी सौंपा गया था। भारत संयुक्त परिवार और छोटी आमदनी वाले लोगों का देश है, जहां लोगों को छोटी रकम की सूरत में लाखों रुपये भेजने पड़ते हैं। रुपयों के लेन देन का काम जिला मुख्यालय में स्थित 321 सरकारी खजानों द्वारा किया जाता था। 1880 में मनी ऑर्डर के द्वारा छोटी रकम भेजने का काम 5090 डाकघर वाली विस्तृत डाक एजेंसी को दिया गया और इस तरह जिला मुख्यालयों तक जाने और प्राप्तकर्ता द्वारा पहचान साबित करने की कठिनाइयां कम होने लगी। 1884 में उच्च पदों पर आसीन कर्मचारियों को छोड़कर देसी डाक कर्मचारियों के लिए डाक जीवन बीमा योजना शुरू की गई, क्योंकि भारत में काम करने वाली बीमा कंपनियां आम भारतीय निवासियों का बीमा करने से कतराती थी। उन कठिन दिनों में से देश में साथ साथ डाक विभाग भी इनके असर को अछूता नहीं रहा। 1857 के बाद विभाग ने आगजनी और लूटमार का दौर देखा है। एक उप डाकपाल और एक ओवरसीयर की हत्या कर दी गई थी। एक रनर को घायल कर दिया गया था और बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्यों के कई डाकघरों को लूट भी लिया गया था। उत्तर पश्चिम सीमांत राज्यों और अवध में सभी संचार लाइनों को बंद कर दिया गया था और हिंसा खत्म होने के जाने के बाद भी साल भर तक कई डाकघरों दोबारा नहीं खोले जा चुके थे। लगभग 5 माह चलने वाले 1920 की डाक हड़तालों ने देश की डाक सेवा को पूरी तरह ठप कर दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई डाकघरों और लेटर बक्सों को जला दिया गया था और डाक का आना जाना बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इसके कारण कई सेक्टर में डाक सेवाएं गड़बड़ा गई थी। आइए देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री। आज भी याद आती है उन चिट्ठियों की जब बात आती है, जो आती थी दूर दराज से। वो खुशियों से भरी मीठी याद दरवाजे पर दस्तक दे जाती है। जो गौरव है 125 करोड़ भारतीयों का, 150 वर्ष से भी अधिक है जिसकी पहचान, 1,55,000 डाकघरों को जो जोड़े है साथ। ऐसे तो पोस्ट ऑफिस और आपका रिश्ता काफी पुराना है और इस रिश्ते को और भी मजबूत बना रहे हैं हम। इंडिया पोस्ट की एक नई सोच, एक नई राह, डिजिटल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। हर दर्पण से झलक रही हैं खुशियां, हर गांव तक मिल रही है मनी ऑर्डर, कोर बैंकिंग ट्रांजैक्शन और पोस्ट ऑफिस की अनेकों सुविधाएं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसने दिया है जिंदगी को एक नया आयुष्मान। आम आदमी से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर की जिंदगी का दर्पण। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, हर जगह हर पल। डीबीटी पेमेंट से आधार की साझेदारी, आसानी से भुगतान करने की ली है हमने ये जिम्मेदारी। आम आदमी की हर जरूरत का हमने रखा है ख्याल। ई कॉमर्स और डिजिटल पहल से लेकर सब कर रहे हैं इंडिया पोस्ट से भागीदारी, जिससे आसानी से मिलेगी घर बैठे सुविधा सारी। क्लाइंट्स को क्या चाहिए होता है, उन्हें एक टाइम बाउंड सर्विस चाहिए होती है, एक टेक्नोलॉजी अपडेट चाहिए होती है। तो हम कमिट करते हैं कस्टमर्स को, हम आपको वो सर्विस देंगे जो आप कुरियर पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर भारतीय को परिवार की तरह जोड़ता, एक पहचान देता, वो आधार कार्ड। पहले आधार कार्ड बनवाने के लिए हमें देखना पड़ता था कहाँ जाए, कहाँ ज़्यादा भीड़ है, सेंटर बहुत कम थे। लेकिन इंडिया पोस्ट ने अपनी अधिकतर ब्रांचों में सुविधा कर दी, जिससे क्या है हम आराम से किसी भी शाखा में जाके जहाँ भीड़ कम है आराम से अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपका बैंक आपके द्वार, हर जगह हर पल तैयार। किसान हो या व्यापारी, गृहिणी हो या विद्यार्थी, सबको साथ लेकर चल रहा है बैंक, सबके साथ बढ़ रहा है IPPB का ये सफल अभियान। ध्यान आपका रखने वालों का रखा है हमने भी ध्यान। जो आते थे खाकी में अब बदल गए हैं उनके भी कुछ साज। नई सोच, नई उमंग और अब नई है हमारी पहचान। बदलते भारत की बदल रही है तस्वीर सारी। अब पासपोर्ट सर्विस हर घर हर गांव तक पहुंचाने की हो गई है कवायद जारी। वाराणसी शहर से आपकी सारी परेशानी को सुन रहे हैं हम। संपूर्ण सुविधा देने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं हम। लिख रहे हैं नए कल को कलम की उसी स्याही से, दीनदयाल स्पर्श योजना को जोड़ते नई पढ़ाई से। विगत वर्ष हमारे डाक विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। एक तरफ हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देश के कोने कोने तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचाने का जिम्मा उठाया, तो दूसरी तरफ देश के अधिकतर पोस्ट ऑफिसेस में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अपनी नागरिक केंद्रित सेवाओं को और भी प्रभावी बनाने की दिशा में हमने काम किया है। पोस्ट ऑफिसों के इस बदलते हुए स्वरूप को मूर्त रूप देने के लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम अपने प्रति जनता के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे और भारत के हर नागरिक तक अपनी सेवाओं को जवाबदेही एवं गुणवत्ता के साथ पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। विश्व डाक दिवस आज है और एक बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश में जहां सांस लेना भी मुश्किल है वहां आज भी चिट्ठियां पहुंचा रहा है हिक्किम डाकघर। 15,000 फीट यानी कि 4,450 मीटर की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां 1983 से दूर दराज के दुर्गम गांव में आज भी चिट्ठियां पहुंचा रहा है हिक्किम डाकघर। दुनिया के सबसे ऊंचे लेटर बॉक्स नुमा इस डाकघर में आज भी रोजाना औसत 500 चिट्ठियां पहुंचाता है। करीब 200 पत्र है और पार्सल में भी प्रतिदिन लोगों के घर घर पहुंचकर सभी चीजें पहुंच जाती है, डाकिया लेके पहुंचता है। यह डाकघर विश्व का सबसे ऊंचा पत्र पेटी की तरह दिखने वाला पहला डाकघर है। इस डाकघर को इसी साल लेटर बॉक्स नुमा बनाया गया था और यह न केवल देखने में आकर्षक है बल्कि इसके बनने के क्षेत्र से लोगों में डाक सेवा के प्रति रुचि भी बढ़ी है। 1983 से हिक्किम गांव में यह डाकघर का एक घर में चल रहा था और अब इसे नए स्वरूप में तैयार किया गया है। रामपुर डाक मंडल के अंतर्गत आने वाला यह डाकघर पूरी तरह डिजिटल है। सरकारी योजनाओं सहित लोगों की पेंशन घर घर तक पहुंचाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज के विशेष दिन पर डाकघर की हम बात कर रहे हैं, इंडियन पोस्ट की बात कर रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है, देखिए। पुरानी दिल्ली की इन सकरी और भीड़ भरी गलियों में डाक सामग्री बांट रहे ये हैं नौजवान पोस्टमैन राजेश चौधरी। पूर्वी यूपी के मूल निवासी राजेश की उम्र 28 साल है और ये इलाका खारी बावली और आसपास का है। परंपरागत पोस्टमैनों से अलग राजेश नई पीढ़ी के हाईटेक पोस्टमैन हैं। चिट्ठी और दूसरी डाक सामग्रियों को बांटने के साथ ही ये डाक बैंक के खाते भी खोलते हैं। ये काम चुटकी बजाते हो जाता है, लेकिन खाता खोलने के लिए किसी को तैयार करना आज बहुत सहज नहीं है। लेकिन बात
भारतीय डाक की है, इस नाते इनको बाकी बैंक वालों से दिक्कत नहीं आती। नॉर्मली हम डेली डाक डिलीवर करते हैं, ऑर्डिनरी डाक, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पर अब हमें जो है IPVP की तरफ से बैंक का काम भी करना है जी, जिसमें हम अभी तो स्टार्टिंग में अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं। उसके बाद जिन्हें भी जो गांव से यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो या कोई रेडी लगा रहा हो, हर किसी का बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उनका हम जो है उनके पास जाके अकाउंट खोलेंगे और जो भी बैंक की सेवाएं हैं वो हम उनके पास ही देंगे, डोर स्टेप सर्विस, जिससे उन्हें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक 164 साल पुरानी भारतीय डाक दुनिया की डाक प्रणालियों में अव्वल है। पूरी दुनिया में डाकघर या तो बंद हो रहे हैं या संचार क्रांति के नाते सिमट रहे हैं, लेकिन भारतीय डाक का विस्तार हो रहा है। आज भी ये सारे देश की संचार व्यवस्था की धड़कन बनी हुई है। शायद ही कोई नागरिक हो जिसका इस संस्थान से साबका न पड़ता हो, चाहे वो डाक हो, बैंकिंग सेवा हो, जीवन बीमा और मनी ऑर्डर हो या फिर पोस्टल ऑर्डर, रिटेल सेवाओं का मामला हो या स्पीड पोस्ट का, मनरेगा की मजदूरी हो या फिर PPF और NCC, भारतीय डाक के बिना काम नहीं। तो देश और दुनिया के विकास के साथ ही पोस्टल सर्विसेज भी डिजिटल हो चुकी और एक्सप्रेस सेवाएं भी शुरू हो चुकी है, और इस सर्विस के तहत देश और दुनिया के लोग आज भी इसकी सेवाएं का लाभ लेती है। पोस्ट से दुनिया की लगभग 80% आबादी को होम डिलीवरी की फैसिलिटी मिलती है, और इसके अलावा 75% लोग ऑनलाइन सेवा भी मिलती है और उसका फायदा भी उठाते हैं। आज 9 अक्टूबर है और विश्व पोस्ट दिवस है। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।